پاکستان اور چین کی دوستی منفرد، آزمودہ اور ہر چیلنج میں مضبوط رہی۔ پاکستان کی مسلح افواج اور چین کی فوج باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں چین کی عوامی آزادی فوج کے قیام کی 99ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ فیلڈ مارشل نے چین کی عوامی آزادی فوج کو سالگرہ پر مبارکباد دی، دفاع، قومی ترقی اور عالمی امن کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ چینی سفیر نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ پاکستان کی غیر متزلزل حمایت اور دو طرفہ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ سیکیورٹی فورسز کا ریزمک میں آپریشن فتنۃ الہندوستان کے 5 خوارج ہلاک، شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر حافظ احسان الہی شہید، نوشکی میں ایک خودکش بمبار سمیت 7 خارجی جہنم واصل، دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، ٹھکانے تباہ، صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید میجر کو خراج عقیدت پیش، کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوج کو ایران پر نئے حملوں کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا ممکنہ حملے ہفتے کے آخر میں شروع ہو سکتے ہیں۔ ایران کے بجلی گھروں، آئل ریفائنری سمیت توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حملے امریکہ اور اسرائیل مشترکہ طور پر کریں گے۔ پینٹاگون کا ایران پر ممکنہ حملوں پر تبصرے سے انکار، کہا صدر کی ہدایات پر کسی بھی وقت کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا مقصد ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ ڈیل کا اعتماد کمزور پڑ رہا ہے۔ ایران کی حملوں کی صورت میں عرب ممالک اور اسرائیل میں توانائی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی وارننگ۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ کے کمانڈر میجر جنرل علی کہتے ہیں کہ جارحیت کر کے بھاگنے کا دور اب ختم ہو چکا۔ غلط اندازے لگا کر کی جانے والی کسی بھی کارروائی کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکہ اور اس کے کرائے کے سپاہیوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے فوجی سامان میں کفن شامل ہونا لازم ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا کہ ایران پر حملہ ہوا تو پورے خطے کو پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے۔ امریکہ کے لیے یہی بہتر ہے، امکانہ اقدام سے گریز کرے۔ اسپیکر باقر کالیباف کا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ میں ایران کی کامیابی کا دعویٰ۔ پینٹاگون کو میزائل دفاعی انٹرسیپٹرز کی شدید قلت کا سامنا۔ فاکس نیوز کے مطابق ایران جنگ سے قبل امریکہ کے پاس پیٹریاٹ دفاعی نظام کے 2300 انٹرسیپٹرز موجود تھے۔ تعداد کم ہو کر 827 رہ گئی۔ تھارڈ دفاعی نظام کے انٹرسیپٹرز بھی 452 سے کم ہو کر 278 رہ گئے۔ دفاعی ذخائر کو مکمل طور پر بحال کرنے میں کم از کم 3 سال لگ سکتے ہیں۔ برطانیہ ایران کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوگا، وزیر خارجہ ایڈ ملی بینڈ کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو یقین دہانی۔ ٹیلی فونک گفتگو میں کہا برطانوی حکومت مسئلے کا سیاسی حل چاہتی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ کسی ملک کی سرزمین کو حملوں کے لیے استعمال کرنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کا غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کی جانب مثبت پیش رفت کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان امریکہ، قطر، مصر اور ترکیہ کی ثالثی کوششوں کو سراہتا ہے۔ توقع ہے کہ غزہ امن منصوبے کے تحت تمام وعدوں پر مکمل عمل یقینی بنایا جائے گا۔ براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے لاپتہ 10 کوپیماؤں میں سے 8 کی لاشیں مل گئی، 2 کوپیما تاحال لاپتہ۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ بین الاقوامی کوپیماؤں کی 10 رکنی ٹیم کیمپ 2 سے کیمپ 3 جاتے ہوئے برفانی تودے کی زد میں آئی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی رائے ونڈ میں نواز شریف سے ملاقات، ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے سیاست میں شائستگی کو ضروری قرار دیا، تلخیوں سے گریز کا مشورہ، کہا اختلاف رائے کو ذاتی انا نہیں بنانا چاہیے، جمہوریت بہترین نظام حکومت، فیصلہ عوام کا حق ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیشہ اتحادیوں کے تحفظات بات چیت سے دور کیے، مسائل کا حل مذاکرات اور مکالمے میں ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا دوسرا مرحلہ، 3 اضلاع مظفرآباد، نیلم اور جیلم ویلی کے 9 حلقوں میں پولنگ کل ہوگی۔ مہاجرین کی 12 نشستوں کے لیے بھی ووٹ کاسٹ کیے جائیں گے۔
8,90,000 से जायद वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुहाजिर हलकों में पोलिंग का सामान तकसीम, वोट का कोई मुतबादिल नहीं, हर शहरी अपना कौमी फर्ज अदा करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल की अपील। इलेक्शन की लम्हा ब लम्हा सूरत हाल और नताइज देखें सिर्फ एम न्यूज पर। आजाद कश्मीर में आने वाली हुकूमत नून लीग की होगी। सासी अनासिर मुहाजिर नशिस्तों पर सवाल उठाते हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, आजाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग को बरतरी हासिल हुई। हर जगह नून लीग की आवाज है। मजीद सीटें भी जीतेंगे। नून लीग के तरक्याती मंसूबे पूरे मुल्क और कश्मीर में नजर आते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात का चौथा दौर। आजाद कश्मीर के पहले मरले के इंतखाबात से मुतल्लिक एतराज़ात और तनाज़ात पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक शवाहिद पर गौर। नून लीग की चौधरी यासीन के दोनों हलकों में दोबारा पोलिंग की तजवीज़ पर भी गौर हुआ। कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूं जो हर पाकिस्तानी को हासिल हैं। अवामी हुकूक में सबसे पहले हक के हाकमियत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा। अवाम हक के हाकमियत के लिए 2 अगस्त को तीर के निशान पर मोहर लगाएं। हमारी उल्टी गिनती से पहले बिलावल अपने वालिद से इस्तीफा लें। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, बिलावल भुट्टो बहुत चीख कर तकरीर कर रहे हैं। उन्हें मरियम नवाज की कारकर्दगी का खौफ खाया जा रहा है। हमारे बड़ों की तौहीन होगी तो हम चुप नहीं बैठ सकते। मरियम नवाज आइंदा इलेक्शन में वजीर आज़म की उम्मीदवार हो सकती हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को अपनी सीटों पर शिकस्त हुई। ये मांगे तांगे की सीटों पर बैठे हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सबको मालूम है नून लीग 2024 का इलेक्शन हारी थी। नए सूबे सियासी मफादात की बजाय अवामी राय की बुनियाद पर बनने चाहिए। सिंध की सेहत की सहूलियात पर तनकीद हकायक के मुनाफी है। पंजाब से 1,19,000 मरीजों ने सिंध में मुफ्त इलाज कराया। मुल्की सूरत-ए-हाल पर हुकूमत के अपने नुमाइंदों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। वजीर दाखिला को 5 साल बाद एहसास हुआ कि मुल्क नहीं चल रहा। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 बड़े पार्टनर्स हैं जो मुल्क चला रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। एक दूसरे को जेलों में डालना खत्म करें। अगर सारे सियासतदान करप्ट हैं तो मुल्क कौन चलाएगा? MQM का नए सूबों के लिए रेफरेंडम का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुल्क में नए यूनिट बनने चाहिए। नए सूबों के लिए सबसे पहले MQM ने आवाज उठाई। नए सूबों की बहस को गद्दारी से न जोड़ा जाए। अवाम को बाइख्तियार बनाना मजबूत जमहूरियत की बुनियाद है। इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम से ही अवामी मसाइल हल होंगे। पीपल्स पार्टी की नए सूबों के लिए रेफरेंडम की मुखालफत। निसार खोड़ो कहते हैं, नए सूबों के लिए सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। मुल्क के खिलाफ भयानक साजिश की जा रही है। क्या 22 सूबे बनाकर 22 वजीर आला चाहिए? विफाकी वजीर दाखिला कहते हैं, निजाम बोसीदा हो गया। आप हाइब्रिड सिस्टम में अच्छे लग रहे हो। पाकिस्तान में इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनाने की जरूरत है। नए सूबे वक्त की जरूरत बन चुके। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, नए इंतजामी यूनिट बनने से आवाम के मसाइल में कमी आएगी। नए यूनिट्स का कयाम हमारी ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान चलाने के लिए मजबूरी है। विफाक बजट में सारे पैसे सूबों को दे देता है। अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी अब सूबों के पास है। वज़ीर आला पंजाब से अमरीका के आला सतह के बिजनेस वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज की सरमायाकारी की दावत। $7 अरब के मंसूबे पेश। कहा, अमरीका पाकिस्तान का अहम इक्तिसादी शराकतदार है। पाक अमरीका ताल्लुकात को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, जिद्दत और निजी शोबे के ताउन के जरिए नई बुलंदियों तक ले जाना होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल के हक में हतक इज्जत का दावा मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का मुराद सईद को 25 लाख हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि मुराद सईद की जानिब से एहसन इकबाल पर 70 अरब रुपए करप्शन के इल्जामात साबित नहीं हुए।
बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई के जेरे इलाज होने की खबरों की तरदीद। एक्स पर बयान में कहा, बानी चेयरमैन के हाई ब्लड प्रेशर या किसी और वजह से जेरे इलाज होने की खबरें दुरुस्त नहीं। बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी जेल में नाहक बंद हैं। हम उनके इलाज और रिहाई का मुतालबा करते हैं। मुतवफ़ी मुलाजिम की पेंशन उमरात पर पहला हक बेवा या नामजद शख्स का है। महज कानूनी वारिस होने की बुनियाद पर बहन भाई इन मरात के मुस्तहिक नहीं बनते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का फौत शुदा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और दीगर मरात से मुतल्लिक फैसला। फौत शुदा पेस्को मुलाजिम के बहन भाइयों की जानिब से विरासतनामा जारी करने की अपील मुस्तरद। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। जमात इस्लामी का महंगे पेट्रोल और लेवी में इजाफे के खिलाफ 7 अगस्त को एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम लेवी को जुल्म और जगह टैक्स करार दे दिया। कहा, हुक्मरान हर मामले पर IMF प्रोग्राम का जवाब पेश करके कौम की मुश्किलात में इजाफा करते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान नूरा कुश्ती जारी है। बिलावल भुट्टो फॉर्म 47 की पैदावार हैं। जब इक्तिदार में हिस्सा कम होता है तो शोर मचाते हैं। भारत ने मुसलसल 11वीं मरतबा सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में फ्लड अलर्ट जारी। भारत से तकरीबन 90,000 क्यूसेक पानी का रेला पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। दरियाए सिंध में तुगयानी से सेवन के देहात जेरे आब। तरबेला और मंगला डैम में भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। कालाबाग, चश्मा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। अमरीका ईरान जंग के नताइज तबाहकुन साबित हो सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस कहते हैं कि जंग से आलमी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो रहा है। तनाज़े ने तवानाई मंडियों को मुतासिर और खाद की कीमतों में इजाफा किया। ईरान जंग से आलमी सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया। आलमी बरादरी कशीदगी में कमी और क़याम अमन के लिए फौरी इक़दाम करे। इसराइल की गजा पर बर्बरियत का सिलसिला जारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक भारत ने गजा जंग के दौरान इसराइल को हथियारों की 2596 खेप भेजी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम ने गजा में इंसानी बहरान नाकाबिले कबूल करार दे दिया। आलमी बरादरी से गजा के अवाम की मदद के लिए मुअस्सर इक़दामात की अपील।